Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Grammar Pinnacle. So let's start chapter number 19 today, which is punctuation marks. So here in this chapter we will learn about different punctuation marks. So punctuation marks क्या है? These are the symbols that are used in sentences. ये वो symbols हैं जिन्हें sentences में use करते हैं हम ताकि उसे और ज्यादा मीनिंगफुल बना सके, हमारे सेंटेंस को और ज्यादा क्लियर बना सके उसके मीनिंग को. सम इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन रूल्स आर एज फॉलोज. कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि हमेशा हमें सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए. जैसे कि स्नेहा कैपिटल लेटर से शुरू है, इनवाइटेड हर फ्रेंड आफ्टर स्कूल. नेक्स्ट, so use capital letters to start proper nouns and titles. Proper nouns और titles को start करने के लिए आपको capital letters को use करना. Example है, जहांगीर खान was once the most powerful man in Asia but not in the world. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहांगीर खान और एशिया दोनों ही proper nouns है जिन्हें हम capital letter में लिखने हैं. Next, third rule is use capital letters for acronyms. Acronyms के लिए भी हमें capital letters लिखना है. जैसे कि the CIA and NSA are just two of USA's many intelligence agencies. तो यहाँ पे acronyms को भी हमने capital में लिखा है. Next, fourth point says that we use a full stop to end declarative sentences and statements. Declarative sentences और statements को खत्म करने के लिए हम full stop को use करते हैं. जैसे कि the earth is round in shape. Next, fifth one, use a question mark to end questions. Questions को खत्म करने के लिए हमेशा question mark लिखें. जैसे कि what has humanity done about the growing concern of global warming? So ये question है तो question mark से खत्म हो रहा है. Have you been there? क्या तुम कभी वहां गए? यहाँ पे भी question है तो ये question mark से खत्म हो रहा है. Next, sixth one, use an exclamation mark to end exclamatory sentences. Exclamatory sentences को जो है denote करने के लिए उनके last में आपको exclamation mark लगाना है. जैसे कि I can't believe how easy the test was. Next, seventh, we use a comma to indicate a break or pause within a sentence. अगर sentence के बीच में कहीं पे break आ रहा है, pause आ रहा है तो हम comma use करते हैं. जैसे कि Bill Gates is a developer of operating system, comma, known as Windows. Next, eighth rule is that use a comma when listing 3 or more items in a series. जब एक सीरीज में कई सारे items हैं तो उनकी लिस्ट बनाते समय भी हम comma का यूज करते हैं. जैसे कि the vegetable basket contain potatoes, tomatoes, onions and peas. Next, ninth one, use a comma to separate two or more adjectives describing a noun. comma को हम तब भी यूज करते हैं जब हम दो या ज्यादा adjectives को जो है separate कर रहे होते हैं जो कि एक noun को describe कर रहा है. जैसे कि the powerful resonating sound caught our attention. तो sound कैसा है? powerful भी और resonating भी है तो यहाँ पे हमने comma यूज किया है. Next, tenth one is we use a comma to separate a larger geographical area. अगर एक बहुत बड़ा geographical area है तो वहां पे भी हम comma का यूज करते हैं from a smaller one located within it. So उसके अंदर अगर एक smaller geographical area दिया है तो उन दोनों को separate करने के लिए हम comma को यूज करते हैं. जैसे कि Los Angeles, California, is one of the largest cities in the United States. तो ये थे कुछ रूल्स. Now, 11th rule कहता है use a comma to separate an introductory phrase from the rest of the sentence. comma को यूज करें एक introductory phrase को अलग करने के लिए बाकी sentence में से. जैसे कि after the exams, G.I. and I went out to dinner. एग्जाम्स के बाद हम दोनों जो है डिनर पे गए. नेक्स्ट, 12th, use a comma to separate two independent clauses. दो independent clauses को अलग करने के लिए हम comma यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है Myra went to the beach yesterday but she forgot to take her sunscreen. So Myra जो बीच पे गई लेकिन वो वहां पे अपना सनस्क्रीन ले जाना भूल गई. So यहाँ पे हमने दोनों अलग अलग चीजों को जो है independent clauses को आपस में comma से सेपरेट किया है. नेक्स्ट, यूज अ कॉमा व्हेन मेकिंग अ डायरेक्ट एड्रेस. जब हम डायरेक्ट एड्रेस
कर रहे हैं तो भी जो है हम जो है कॉमा यूज करते हैं। जैसे आशा could you come here for a minute, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आशा के बाद हमने कॉमा लगाया है। नेक्स्ट, यूज अ कॉमा टू सेपरेट अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द सेंटेंस इंट्रोड्यूसिंग इट। हमें कॉमा का यूज करना है डायरेक्ट कोटेशन को सेपरेट करने के लिए एक सेंटेंस में से जो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि मयंक आस्क्ड, देन कॉमा, डू यू वांट एनीथिंग टू ईट। यूज द डबल कोटेशन मार्क टू enclose a direct quotation derived from either a spoken or a written source। So यहाँ पे हम डबल कोटेशन मार्क यूज करते हैं, जैसे कि I can't wait to see her performance, exclaimed Neeti। So these are the rules. Now let's move on to workout, which is a book exercise. Here a exercise is punctuate the following sentences using capital letters and other punctuation marks. यहाँ पे कैपिटल लेटर्स को यूज करना है और दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना है और फिर ये आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जिसमें आर कैपिटल हो जाएगा और एल्डर्स के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकेंड है वॉट अ लवली फ्लावर, सो यहाँ पे वॉट का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और फ्लावर के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। थर्ड वन, आई रीड द ट्रिब्यून एवरी संडे, सो आई का आई कैपिटल है, द ट्रिब्यून का है टी कैपिटल हो जाएगा द का और ट्रिब्यून का संडे का एस कैपिटल हो जाएगा एंड लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फोर्थ वन, व्हेन विल यू लीव फॉर शिमला, तो यहाँ पे व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल, शिमला का एस कैपिटल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिफ्थ वन, मे यू सक्सीड, सो मे का एम कैपिटल एंड लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट सिक्स वन, दे से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो दे का टी कैपिटल, से के बाद कॉमा लगाएंगे और कोटेशन मार्क ओपन करेंगे एंड कोटेशन मार्क के में जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, तो ऑनेस्टी का एच कैपिटल करना है, लास्ट में फुल स्टॉप और कोटेशन मार्क क्लोज करना है। सेवेंथ वन, इट इज माई सिस्टर्स बुक, तो इट का आई कैपिटल, सिस्टर्स में अपॉस्ट्रोफी लगेगा एंड बुक के बाद फुल स्टॉप लगेगा। एट है मोहन सेड कम हियर, सो मोहन का एम कैपिटल, सेट के बाद कॉमा एंड कोटेशन ओपन, कम का सी कैपिटल, हियर के बाद फुल स्टॉप और कोटेशन क्लोज। नाइन्थ वन, वी ऑनर गैलीलियो एज अ फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल, ऑनर के बाद गैलीलियो है, गैलीलियो का जी कैपिटल क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है एंड साइंस के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट टेंथ वन, ओ गॉड हेल्प दाई चिल्ड्रन, सो ओ का ओ कैपिटल, गॉड का जी कैपिटल, फिर लगेगा एक कॉमा एंड देन होगा हेल्प, दाई का टी कैपिटल एंड देन चिल्ड्रन के बाद फुल स्टॉप। 11th है विमेन लाइक चाइनीज सिल्क, तो विमेन का डब्ल्यू कैपिटल, चाइनीज का सी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। सो लाइक दिस डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू बी एक्सरसाइज। हियर यू हैव टू रीराइट द पैसेज यूजिंग पंक्चुएशन मार्क। सो पैसेज को आपको पंक्चुएशन मार्क्स के साथ जो है लिखना है। So the sentence starts with who made this mess? This is a question, so we have put a question mark and also a dialogue. So we have put this dialogue in double quotation mark and the first word of who, W will be capital here. Ask Miss Reshu, Miss Reshu का M and R जो है capital होगा, full stop. You have to clean it up quickly, ये अगेन फिर से एक डायलॉग है तो यू का वाई कैपिटल, कोटेशन मार्क में इस पूरे डायलॉग को डालेंगे एंड फिर क्विकली के बाद एक कॉमा लगाएंगे। She said, then full stop again. Meenu and I ran around with brooms and mops, तो मीनू का एम कैपिटल, आई कैपिटल एंड मॉप्स के बाद कॉमा लगेगा, making the room look spick and span, then span के बाद full stop लगेगा। Only then could we go out to play and then full stop again. Do the rest yourself. Next C exercise, rewrite the sentences by using apostrophes, capital letters, commas and quotation marks correctly. So first sentence is Philip asked, ask के बाद comma and then quotation mark open. Where का W capital, where have you been all evening, question mark लगा हुआ है, quotation mark close करेंगे। Second, Amit's sister is studying to be a डॉक्टर, सो अमित में अपोस्ट्रोफी लगेगा अमित और एस के बीच में। नेक्स्ट थर्ड वन, द टीचर इन्फॉर्म मी दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द कॉन्टेस्ट,
सो द टीचर का द कैपिटल, द में से टी कैपिटल करेंगे और आई कैपिटल होगा. फोर्थ वन, द पैसिफिक ओशन इज होम टू मेनी स्मॉल आइलैंड नेशंस. सो द पैसिफिक ओशन का जो पहला लेटर है द का टी, पैसिफिक का पी और ओशन का ओ कैपिटल होगा. Like this you have to do the rest of the questions. Next, let's move on to the exercise. Here you have to circle the punctuation marks in the following sentences. यहाँ पे कुछ sentences है, इसमें आपको punctuation marks को circle करना है. So here the first one is wow, what a success. So here we will circle exclamation mark. Second, bulbul chirp in the morning. We have to circle the full stop. Third one, have you taken your book? Geeta Aspriya. सो हैव में आप देख सकते हैं कोटेशन मार्क है, उन्हें सर्कल करना है, क्वेश्चन मार्क को सर्कल करना है और फुल स्टॉप को सर्कल करना है. सो द रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट ई एक्सरसाइज, फिल इन द मिसिंग पंक्चुएशन मार्क्स. सो यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है, आपको उन्हें फिल करना है. व्हाई इज द म्यूजिक सो लाउड, क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. सेकेंड, स्टॉप, कॉमा, कोटेशन मार्क ओपन, लेट, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे इससे पहले, let's go back, full stop लगाएंगे and quotation mark close. Third one, I have to hurry to the store, full stop लगाएंगे यहाँ पे. Fourth one, Zina has this dress in red, green and blue. So यहाँ पे red और green के बीच में कॉमा लगाएंगे और blue के बाद full stop लगेगा. Next, fifth one, you have to do yourself. Now let's move on to F exercise. Circle the correct form of verb in the following sentences. The first one is Rahul and Gauri. दो बच्चों की बात हो रही है तो हम यहाँ पे are लगाएंगे. So Rahul and Gauri are always late to class. Second, Shanti has very interesting ideas for the project. Third one, I am feeling unhappy today. So the rest of the questions are your homework. You have to do yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.